Hello students, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic chemical bonding in the molecular structure. Firstly, I extremely sorry for discontinuity. Due to some reason continuity बीच में break हो गई थी, but I am back here with your topic, with your chapter chemical bonding in the molecular structure. ये हमारा जो आज का लेक्चर है, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इस चैप्टर में कंप्लीट जो है वो हो गया था. सिर्फ एक जो है वो टॉपिक आपके पास में बचा है एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Before starting the topic hydrogen bonding, I just want to clear one topic and that is PP overlapping. मुझे कोई कमेंट जो है वो मिला था कि PP overlapping जो है वो वापस से रिपीट जो है वो किया जाए, उसे वापस रिवाइज करवाया जाए. So in today's lecture, I am firstly going to recall to repeat PP overlapping. After that, we will start the today's topic that is hydrogen bonding और उसको complete करके हम हमारा chapter जो है वो आज complete कर लेंगे. So let us start our topic. PP overlapping की जो है वो पहले हम बात कर लेते हैं. PP overlapping. बिफोर स्टार्टिंग द पीपी ओवरलैपिंग, उससे पहले मैं जो है वो ओवरलैपिंग की अगर बात करूँ, ओवरलैपिंग इन द ऑर्बिटल्स कैन बी एसएस ओवरलैपिंग, इट कैन बी एसपी एंड इट कैन बी पीपी ओवरलैपिंग. इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल जो है वो आपके पास में स्फेरिक जो है वो होता है, नॉन डायरेक्शनल जो है वो होता है. दिस इज द एस ऑर्बिटल and this is again the s orbital. If we just talk about the ss overlapping, there is no direction properties इसकी नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है. तो जब इनका ओवरलैप होगा तो यहाँ पर जो है वो एक ही टाइप का जो है वो ओवरलैपिंग पॉसिबल है एंड दैट इज एक्सियल overlapping. And as a result of the axial overlapping, sigma bonds will be formed here. दो तरह से जो है वो overlapping हो सकती है. One is axial and the another one is lateral or axial. This is head-on overlapping and this one is side-on overlapping. As the result of head-on overlapping or the axial overlapping, sigma bond will be formed, while as the result of the partial overlapping, lateral overlapping or the side-on overlapping, pi bonds will be formed here. Right? Axial overlapping या head-on overlapping से हमारा मीनिंग क्या है? जबकि आपके पास में head to head जो है वो overlap करेगा, then that is the head-on or the axial overlapping, and the result is the formation of the sigma bond. While if these are the orbitals, ये इसका हेड है, हेड पोर्शन है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, नहीं तो ये एक जो है वो साइड से भी जो है वो ओवरलैप कर सकता है. एंड इफ द साइडवाइज ओवरलैपिंग इज अकरिंग हियर, देन दिस इज साइडवाइज और द लेटरल ओवरलैपिंग या पार्शियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट आपके पास में बनता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन. So, firstly, we are talking about the SS overlapping. S orbital non-directional है, spherical जो है वो उसका शेप होता है. That is why there is no head portion. इसलिए इसमें जो है वो दो स्फेरिक जो है वो S orbital हैं, कहीं से भी ओवरलैप करे, नॉन डायरेक्शनल है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी. एंड एज द रिजल्ट ऑफ द हेड ऑन ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म हियर, जिसमें कि आपके पास में ओवरलैपिंग क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है. ओवरलैपिंग क्वांटिटी इन द एक्सियल ओवरलैपिंग is high here while is low in the partial overlapping or the lateral overlapping, and the result will be the pi bond formation. Right? Okay. Now, s orbital can overlap with the s orbital. S orbital can further overlap with the p orbital. S orbital का shape आपके पास में इस तरह से आएगा. This is the spheric shape. Now, if we just talk about the p orbital have the shape dumbbell. This is
पी ऑर्बिटल जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो वेव फंक्शंस प्लस माइनस जो है वो आपके पास में आएंगे, राइट। सपोज दैट इसको जो है वो आप प्लस मान के चलिए, नॉन डायरेक्शनल है ये। यहाँ अगर मैं बात करूँ इनकी, दिस इज द एस ऑर्बिटल इन द पी ऑर्बिटल, इफ द overlapping is occurring here, then only one case is here, and that is axial overlapping or the head-on overlapping. By the result of the head-on overlapping, sigma bond will be formed here. Again head-on overlapping हो रही है, sigma bond का formation हो रहा है between the s and the p orbital. Reason देखिएगा इसे, चलिए हमने यहाँ पे तो क्या है ये आपके पास में नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आप इसको ओवरलैप करवाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पी ऑर्बिटल, इट हैज लोब्स, ठीक है, इसका जो है वो डम्बल शेप्ड है, इसमें जो है वो लोब्स हैं, ये बीच में नोड प्रेजेंट है। इन दीज लोब्स दे आर ऑपोजिट वेव फंक्शंस, ये वेव फंक्शंस हैं, प्लस इन द माइनस साइंस आर द वेव फंक्शन यार। इसको अगर हम बात करें, ये पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से है और एस ऑर्बिटल कुछ इस तरह से है। क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नो, ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल हेयर। देखिएगा, दिस इज द पी ऑर्बिटल हेयर, ये आपके पास में एस ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग होगी ही नहीं इस तरह से। दैट इज व्हाई देयर विल बी नो पार्शियल ओवरलैपिंग, देयर विल बी नो lateral overlapping between the s and the p orbital, and there will be no formation of the pi bond. If s orbital ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि पार्शियल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ओनली वन टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग कैन अकर बिटवीन द एस एंड द पी, एंड दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल का कोई हेड नहीं है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, बट दिस इज अ हेड पोर्शन। हेड से जो है वो अगर ये कर रहा है, या साइड से जो है वो कर सकता है। दो तरह से पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकता है, हेड ऑन या साइड ऑन। साइड ऑन ओवरलैपिंग विद द एस इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल हियर। नाउ द क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया था, दैट इज अबाउट द पी पी ओवरलैपिंग हेयर। हम बात करते हैं पी पी ओवरलैपिंग की। कीप वॉचिंग, यस प्लीज। पीपी ओवरलैपिंग जो कि क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात करते हैं। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पीपी ओवरलैपिंग, इट इज द पी ऑर्बिटल हेयर which has a node, two lobes with opposite wave functions, right? ऐसा ही एक और पी ऑर्बिटल जो है वो मैं लेती हूँ जिसके बीच में मुझे ओवरलैपिंग जो है वो बतानी है। दिस इज अगेन the p orbital with a node and two lobes with opposite wave functions. This is about the p and the p overlapping. When the p and the p orbital overlaps with each other, there can be two type of the overlapping, either axial or partial or lateral। कुछ भी बोले आप, partial बोले, lateral बोले, साइड ऑन या साइड वाइज बोले, एंड दिस इज एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग और द हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड पार्शियल, लैटरल और द साइड ऑन ओवरलैपिंग कैन अकर बिटवीन द पी एंड द पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल ये डायरेक्शनल है, ये यहाँ पर डबल शेप्ड होता है। इसका हेड से भी जो है वो ओवरलैप हो सकता है या साइड से भी ओवरलैप हो सकता है। दो तरीके हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग के। वन इज दिस, व्हेन द हेड पोर्शन, बाय द हेड पोर्शन ऑफ वन पी ऑर्बिटल ओवरलैप विद द हेड पोर्शन ऑफ द अनदर पी ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग इज head-on overlapping, axial overlapping, and the resultant will be the formation of the sigma bond। जबकि अगर मैं बात करूँ p ऑर्बिटल की, तो ये आपके पास में इस तरह से भी ओवरलैप कर सकता है। This is the p orbital with a node, two lobes
विद ऑपोजिट साइंस हेयर, इस तरह से भी तो जो है वो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है। एंड दिस टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग इज लैटरल या पार्शियल और साइड ऑन ओवरलैपिंग एंड द रिजल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, राइट। ओके, हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, या एक और तरीका है कि ये साइड ऑन जो है वो ओवरलैप कर ले, राइट। इसके अलावा एसएस में, एसपी में ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं थे। वाइल इन द पी एंड द पी ऑर्बिटल देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ टू टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग, हेड ऑन और साइड ऑन ओवरलैपिंग, राइट। ओके, हैव अ लुक नाउ। इफ द P and the P orbital overlaps head on. Head on overlapping जो अगर है तो यहाँ आपके पास में जो है वो आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं या आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, दिस इज द P orbital, अनदर P orbital, इस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग होगा एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द P एंड द P. PP हेड ऑन ओवरलैपिंग को ये जो है वो आपके पास में शो कर रहा है। दिस इज द PP हेड ऑन ओवरलैपिंग, axial overlapping, and the sigma bond is formed here when the P and the P orbital overlaps axially. Clear? Okay. Now, if we'll just talk about the side on overlapping, तो देखिए side on overlapping में आपके पास में जो है वो कुछ इस तरह से overlapping जो है वो होती है। This is the overlapping area here, जो कि यहाँ से कम है एंड द पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म हेयर। दिस इज द पाई बॉन्ड, ये आपके पास में नोडल प्लेन होगा। दिस इज द नोडल प्लेन हेयर, इसे आप कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, दैट प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जो है वो प्रेजेंट होते। और ये आपके पास में जो है वो लोब्स हैं, मतलब यहाँ पर जो है वो क्या होंगे, लोब्स आर द रीजन जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि नोड्स पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं होती। आप इसे कुछ इस तरह से भी जो है वो शो कर सकते हैं। दिस इज द नोडल दिस इज द नोडल प्लेन हेयर एंड ये जो है वो आपके पास में लोब्स को जो है वो शो कर रहा है, मतलब कि जो दीज आर द एरियाज वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट, और ये एरियाज जो है आपके पास में ये है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, वाइल दिस इज द नोडल सरफेस जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट अबव और बेलो द प्लेन, बेलो द प्लेन हो सकते हैं, अबव द प्लेन हो सकते हैं। प्लेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते इन द P साइडवाइज ओवरलैपिंग इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। This is about the axial and the partial or the lateral overlapping, जिसका की रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाइल द ओवरलैपिंग क्वांटिटी इन द पाई बॉन्ड वो कम होती है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द PP ओवरलैपिंग। चलेगा, अब अगर हम यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बताना चाहें तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द BF3 मॉलिक्यूल, जिसमें कि आपके पास में एक्सेल ओवरलैपिंग होती है। PP एक्सेल ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है, जबकि पार्शियल ओवरलैपिंग में हम एग्जाम्पल लेंगे ऑफ O2। चलिए समझते हैं। यस, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल BF3 वेयर बोरोन इज द सेंट्रल एटम हेयर। बोरोन की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये। 1s2 2s2 इन द 2p1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 दिस इज द 2s ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वाइल दिस इज द 2p ऑर्बिटल, जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ फ्लोरीन की बात अगर हम करें तो फ्लोरीन आपके पास में जो है वो 9 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 1s2 2s2 एंड द 2p5। क्लियर? हैव अ लुक नाउ। 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर विद ऑपोजिट स्पिन, 1s 2s and these are the 2p orbitals, जिसमें 1 2 3 4 and 5 electrons will be here in the 2p orbital. Have a look here
in the molecule BF3 from 1 boron atom 3 fluorine atom bind here। इसका मतलब देखिएगा होना क्या चाहिए, यहाँ पर आपके पास पे बोरोन के पास में 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड हमेशा ओवरलैपिंग जो होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपके पास में बिटवीन द अनपेयर्ड एंड द ओपोजिट, विथ ओपोजिट स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास में ओवरलैप कर सकते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हेयर। तो ये कैसे जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, इसलिए दिस इज द ग्राउंड स्टेट हेयर। होता क्या है, मॉलिक्यूल जो है या जो एटम है आपके पास में वो एक्साइटेड हो जाता है। एटम बिकम एक्साइटेड हेयर एंड इन द एक्साइटेड स्टेट ये जो 2s है यहाँ से एक्साइटेड स्टेट है, मतलब एनर्जी जो है वो लेकर के ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आएगा। 1s in 1s there are 2 electrons, 2s and the 2p, 2s and the 2p, जहाँ 1 and 1 एक और इलेक्ट्रॉन था। दिस इलेक्ट्रॉन जंप हेयर इन द हायर एनर्जी लेवल। और अब यहाँ देखिए 1 2 and 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल हेयर। 3 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं टू पेयर अप विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर अप करने के लिए। अभी देखिए एक इलेक्ट्रॉन अपना जो फ्लोरीन है वो यहाँ डालेगा, दूसरा यहाँ डालेगा और तीसरा यहाँ डालेगा और BF3 मॉलिक्यूल का जो है वो फॉर्मेशन होगा। चलिए हम यहाँ ओवरलैपिंग डिस्कस कर रहे हैं, उसी की बात करते हैं। बोरोन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, इन द p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास में पहले जो है वो हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर जो है वो होगा। आफ्टर दैट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या करता है, दैट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम के जो या फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल हैं उनके साथ में जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो करेगा। चलिए बात करती हूँ मैं b ऑर्बिटल की या बोरोन के ऑर्बिटल की। दिस इज द ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन। बोरोन का जो है वो आपके पास में p ऑर्बिटल है, या फिर यहाँ अगर आप जो है वो बात करें अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में यहाँ पर जो है वो आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो ऑर्बिटल हैं ये b के। These are the 3 sp2 hybridized orbital of the boron। बोरोन के जो है वो ये 3 sp2 hybridized orbital हैं। अब देखिएगा the p orbital of F will overlap here, और ये ओवरलैपिंग कैसे कर रहा है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग। द अनदर F will overlap with the another sp2 hybridized orbital of the boron and the third one with the third sp2 hybridized orbital. These are the 3 p orbitals of 3 different fluorine atoms which are making the axial overlapping, which are making the sigma bond with the sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द बोरोन। और इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड बाय द हेल्प ऑफ द एक्सियल ओवरलैपिंग फॉर्म हेयर इन द BF3 मॉलिक्यूल। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं ऑफ द O2 मॉलिक्यूल। यस प्लीज। O2 molecule in which oxygen has 8 electrons और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 जो है वो होता है। Now let's just talk about the O2 bond formation। p ऑर्बिटल की मैं अगर बात करूँ, this is the 2p ऑर्बिटल जिसमें px py pz 3 ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ आइएगा, this is about the electronic configuration of the p 1 2 3 and the 4 right। अब यहाँ देखिएगा, this is suppose px py and pz ऑर्बिटल है ये। यहाँ ऐसा ही एक और ऑक्सीजन एटम जो है वो होगा जिसके px py pz ऑर्बिटल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की सेम फिलिंग होगी, सॉरी
दिस इज द 2p ऑर्बिटल, जिसमें कि ये 2px 2py एंड द 2pz है, जिसमें कि 1 2 3 एंड 4 कुछ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट है। इसका आप चाहे ऑपोजिट स्पिन ले लीजिए, ऑपोजिट स्पिन वाले ही जो है वो करते हैं, किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकता है। चलिएगा, अब अगर हम बात करें दिस पी वाई ऑर्बिटल विल मेक द बॉन्ड विद दिस पी वाई या ओवरलैप विद पी वाई की ओवरलैपिंग होगी पी वाई के साथ में, एंड द पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द पी जेड ऑफ द अनदर ऑक्सीजन एटम। गॉट इट। और इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड का जो है वो फॉर्मेशन होता है। चलिए बॉन्डिंग की बात करते हैं। px py pz की बात करूं, वी नो इट वेरी वेल दैट देयर आर 3 एक्सिसेस जिसपे कि आपके पास में ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है। सपोज दैट दिस इज द p, ये y एक्सिस माना मैंने, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, राइट। चलिए यहाँ मैं पी वाई ऑर्बिटल एंड द पी जेड ऑर्बिटल की बात करूँ, पी एक्स जो है वो ओवरलैपिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ऑफ वन ऑक्सीजन एटम अनदर ऑक्सीजन एटम, दूसरे ऑक्सीजन एटम की अगर बात किया जाए तो देखिएगा वहाँ पर भी एक लोब जो है वो पी वाई का होगा, मतलब वाई एक्सिस पर होगा। अनदर लोब विल बी ऑन द z एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, जहाँ पे कि आपके पास में ऑर्बिटल प्रेजेंट तो है बट इट इज नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। रीजन फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड नहीं जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ फिल्ड विथ ऑपोजिट स्पिन, ओनली हाफ फिल्ड विथ ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं। हैव अ लुक नाउ, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन द पी वाई एंड पी वाई ऑर्बिटल, जबकि pz और pz की जो ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जो कि रिजल्ट देगी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन का, एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। उस तरह से डबल बॉन्ड जो है वो बनता है। इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड विल बी हियर, और यही हमारे पास में जो है वो क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द PP पार्शियल ओवरलैपिंग, जिसमें एक जो है वो हेड ऑन और दूसरा ऑर्बिटल साइड ऑन ओवरलैप जो है वो कर रहा है टू फॉर्म द सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द PP ऑर्बिटल, जो कि मैंने रिवाइज करवाया अकॉर्डिंग टू द कमेंट। अब जो है वो हम आज के टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीप वॉचिंग। यस, आगे बात करते हैं अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Actually, the hydrogen bonds are those bonds which is formed between the hydrogen and the more electronegative species. कोई भी एटम जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन से, उसके और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जो है वो होता है। देखिएगा, दिस इज द बॉन्डिंग, दिस इज द बॉन्डिंग, this is the bonding which is formed between hydrogen and more electronegative atom. The bond which is formed between the hydrogen and the more electronegative atom, that is hydrogen bonding. राइट, जो हाइड्रोजन और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो होंगे। बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा डॉटेड लाइन से जो है वो शो जो है वो किया जाएगा, शोन बाय, it is shown by dotted line, डॉटेड लाइन से शो किया जाएगा। बिटवीन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। किस किस के बीच में बनेगा, ये बनेगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के बीच में जो है वो बॉन्ड बनता है, दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। दिस इज द वीकर बॉन्ड दैन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से वीक जो है ये बॉन्ड आपके पास में होता है। साथ ही साथ पे अगर मैं बात करूं, दिस इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक्चुअली में बॉन्ड नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्यों जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है ड्यू टू पोलैरिटी, ये बॉन्ड बनता है ड्यू टू पोलैरिटी विच जनरेट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी जनरेट होगी और उसी पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, जो कि आपके पास में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो होगा। चलिए एग्जाम्पल्स की जो है वो बात अगर हम करें यहाँ पर, तो देखिए कोई भी एलिमेंट है दैट इज H विथ अटैच X, राइट। हाइड्रोजन के साथ में कोई भी अगर एलिमेंट अटैच है, होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द कंडीशन यार। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हाइड्रोजन किसी हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन दैट मॉलिक्यूल्स, ये लीजिए दिस इज द अनदर HX मॉलिक्यूल। यहां पर देखिएगा होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन ऑफ H, दैट इज व्हाई द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिटिल बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स द X की तरफ थोड़े ज्यादा जो है वो शिफ्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इट विल अटेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब फ्रैक्शनल चार्ज यहाँ पर जो है वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अभी देखिए दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड हेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो ये पार्शियल चार्ज इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बिकॉज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी जनरेट्स हेयर, और इसी पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Again partially negative in the partial positive charge. Have a look now, between the partial charges there is a force, electrostatic force of attraction यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जिसको आप डॉटेड लाइन से बताते हैं, और यही क्या है? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड हेयर। यही आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो होता है। बाय द डॉटेड लाइन बताया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ये जनरेट हो रही है बिटवीन द टू एटम्स, जिसमें से एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमेशा हाइड्रोजन से अटैच्ड कोई भी एलिमेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड से जो है वो बॉन्डेड है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वन मोर थिंग, अच्छा अगर बात करें तो देखिए काम कैसे कर रहा है, ये ब्रिज की तरह जो है वो काम करता है, इट विल एक्ट लाइक अ ब्रिज की तरह जो है वो काम कर रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ब्रिज की तरह जो है वो काम कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, साथ ही साथ में इसके टाइप्स जो है उसकी भी बात करते हैं। कीप वॉचिंग। यस प्लीज, एग्जाम्पल्स की बात करें, लाइक इन द HF मॉलिक्यूल, दीज आर सम HF मॉलिक्यूल्स जिसमें कि दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, दैट इज व्हाई पोलैरिटी जनरेट्स हियर इन दिस मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। रीजन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो शिफ्ट करेगा, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा, एंड हाइड्रोजन हैज़ द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। नाउ partial charge, and we know it very well that unlike charge attract to each other, that is why electrostatic force of attraction generate here, जो कि डॉटेड लाइन से बताया जा रहा है, और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड।
चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं अबाउट द H2O मॉलिक्यूल, तो यहाँ ये देखिएगा, दिस इज H2O, ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हेयर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगेन पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव इन द पॉजिटिव चार्ज हेयर, बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज पार्शियल या फ्रैक्शनल चार्ज है, क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में जनरेट हो रहा है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जनरेट हो रहा है। कोवलेंट बॉन्ड से वीकर है, लाइक ब्रिज जो है ये काम कर रहा है, डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं अबाउट द नेक्स्ट, तो कुछ इस तरह से भी जो है वो आप इसको देख सकते हैं, और हमें पता है इसी तरह से आइस एंड वाटर जो है वो फॉर्म होता है लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये आपके पास में जो है वो क्या कर रहा है, हेयर टू कोवलेंट वाइल वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, जिसमें कि दो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जनरेट हो रहे हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से आपकी केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है और आइस और वाटर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि वीक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड से वीक जो है वो होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि दो टाइप के होंगे। One will be the intermolecular hydrogen bonding and the another one will be intramolecular hydrogen bonding. Keep watching. आगे करते हैं डिस्कस। Yes, next topic is types of hydrogen bonding. There are two types of the hydrogen bonding. Firstly, intermolecular hydrogen bonding and the intramolecular hydrogen bonding. If we'll just talk about the inter and the intramolecular hydrogen bonding, ये inter and introvert बहुत सारी जगह काम आते हैं, and if you are a student of biology तो आपके भी बहुत सारी जगह काम आएगा। यहाँ देखिए, if you have confusion in these two words, तो आप एक जो है वो टर्म याद रख लीजिए, intercaste marriage. इन द इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन द टू ऑपोजिट कास्ट, मतलब दो अलग अलग कास्ट के बीच में जो है वो अगर मैरिज होती है तो उसको इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। तो सेम है यहाँ पर देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, व्हाट वी मीन बाय द इंटरमॉलिक्यूलर, इफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दिस इज द बॉन्ड विच फॉर्म्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है देन इट विल बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। While if we'll just talk about the intramolecular, ये कहाँ बनता है, within the molecule जो है वो जनरेट होता है। This bond forms within the molecule, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, HF मॉलिक्यूल, अभी हमने जो है वो बात किया था। In HF molecule, we know it very well that hydrogen bonds form here between the molecules. अलग अलग जो है वो molecules के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखिएगा इसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लीजिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल।
स्ट्रक्चर बनाएं। सबसे पहले फिनॉल, दिस इज द बेंजीन हेयर, बेंजीन से OH अगर अटैच कर रहा है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज द फिनॉल, राइट। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, किसी भी रेस्पेक्ट के जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ये ऑर्थो होती है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है दैट विल बी द मेटा पोजीशन एंड उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पैरा पोजीशन है। आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाना है। एट द ऑर्थो पोजीशन आई एम अटैचिंग द स्पीसीज नाइट्रो ग्रुप हेयर, ये लीजिए दिस इज द नाइट्रो ग्रुप हेयर और ये यहाँ पर जो है वो मैंने बना दिया OH, right? Have a look now. हाइड्रोजन एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेयर, तो ये आपके पास में जो है वो यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड हेयर, जो कि विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अपने आप में ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस विल बी द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while if the bonds are formed between the टू मॉलिक्यूल्स तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा देखिएगा H जो है फ्लोरीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में जो है वो बॉन्ड बना सकता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेंगे, बिकॉज दीज ऑल आर द एटम्स विच हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है आज का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ में ये चैप्टर हमारा जो है वो भी आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है वो लेक्चर समझ में आए होंगे, आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। If you like the chapter, if you like my videos, then please like, share and subscribe it. तब तक के लिए keep watching, keep studying, stay home, stay safe. Thank you so much for watching. Bye.